going to teach you about simplification. Firstly, we start simplification from BODMAS rule. What is BODMAS rule? Please write in your notebook. Places 3 columns. First one is abbreviated used in rule. Second is for the meaning, and third is for the notation. What is the abbreviation used in rule? V, B, O, D, M, A, S. What is the meaning of V? Please write in the meaning vinculum. Vinculum, or you can say bar. Or you can say bar. What is the notation of bar? This one. Second one is B. B abbreviated for brackets. And what is the notation of brackets? Small bracket, middle bracket, and square bracket. The third one is O. What is the meaning of O? Of. And the notation is also of. Fourth one is D means division. And what is the notation of division? This. Next is M for multiplication. What is the notation of multiplication? Cross. A for addition. And notation of addition? S for subtraction. And notation of subtraction? सिंप्लीफिकेशन में हमें इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है. सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, और सबसे बाद में सब्ट्रैक्शन को. हैव यू राइट इट? ओके प्लीज. समझने की क्या जरूरत है आपको? बेटा जिसको भी समझ नहीं आएगी तो दोबारा से पूछेंगे आप. और यही अगर मैं ले लूंगी टेस्ट सरप्राइज भी, अगर कोई एक का फिर देख लेना. क्लियर डाउट? ओके, आस्क अगेन. क्या समझ में आया? ये सिंपली BODMAS रूल की एब्रिविएशंस लिखी हुई है कि BODMAS रूल के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं. V4 होता है विंकुलम बार. इसको छोड़ दो, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है. B4 सबसे पहले हम क्वेश्चंस में ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑफ को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन D4 डिवीजन को सोल्व करते हैं, उसके बाद M4 मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं, उसके बाद A4 एडिशन और S4 सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं. मैम जो बी वाला वो लिखना जरूरी है. यस, मैम बट इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सोल्व नहीं होता है. यस, अभी क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ आएगा. अभी क्वेश्चन पे आ जाओ. ये लिख लिया सबने? यस मैम. ओके. कैन आई लव इट? yes ma'am. Am I one meaning? Done? Yes ma'am. Please do it fast.
Have you done it? Done? Yes, ma'am. हो गया? रफ कर रही हूँ मैं. And don't read this note. Done? No, ma'am. How many of you have not done? ये वाला बना दे ब्रैकेट, ये सेकंड वाला बना दे. अभी सेकंड वाला ब्रैकेट बनाना नहीं आ रहा. Done? Yes, ma'am. Next one is types of brackets. नेक्स्ट पेज से लिखना है. Types of brackets. Number first is मैं number first is simple bracket and notation is this. Number second is curly brackets and notation is this. Number third is square bracket and notation is this. there are three. Yes. Done? Done. Next one is the rule of multiplication and divisions of signs. Rules for multiplication and division of signs plus and minus
यहाँ पे है, आपको एक टेबल बनानी है। इधर मल्टीप्लिकेशन, दूसरे साइड डिवीजन, इस साइड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में साइन का क्या होता है और डिवीजन में साइन का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में if plus is multiplied by plus sign, then you get plus. If multiplied plus sign by minus sign, you will get minus. If multiply minus sign with plus sign, you will get minus. If you multiply minus sign with minus sign, you will get Plus. plus. But in division is also same. When you divide plus sign by plus sign, you will get plus sign. When you divide plus sign by minus sign, you will get minus sign. When minus sign divided by plus sign, you will get minus sign. When divide minus sign by minus sign, you will get plus sign. Got it? समझ आया? जब प्लस साइन को प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस साइन ही आता है। जब प्लस साइन को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आएगा। जब माइनस साइन को प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस साइन आएगा। जब माइनस साइन को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस साइन आएगा। सेम डिवीजन में, डिवीजन करेंगे अगर प्लस की प्लस में तो प्लस आएगा, प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और जब माइनस की माइनस में करेंगे तो हाँ डिजिट्स का। पर 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट के साथ साइन देंगे। मतलब अगर 1 है तो आगे जाके भी वो 1 ही आएगा। Done? No ma'am. I'm number 3 पे हूँ। नंबर 3 रूम। For example, this question. According to BORDMAS rule, what we have to solve firstly? Where is of? Between 6 and 7. Then what can we put in the place of? Multiply. 84 plus 16 divided by 2 minus 6. 6 multiply 7. What is 6 multiply 7? 42. यहाँ पे आपको सीधा 42 लिखना है। ओके, हमने ऑफ को सॉल्व कर दिया है, और ऑफ को सॉल्व करते हैं तो कौन सा साइन लगता है? जब ऑफ को सॉल्व करते हैं तो कौन सा साइन लगता है? मल्टीप्लाई 6 7 जा 42। यहाँ पे साइड में लिखना है ऑपरेशन ऑफ। कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने इस लाइन में? ऑफ को सॉल्व किया। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू BORDMAS रूल उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन को। अब डिवीजन आपको कहाँ पे दिख रही है? इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्व करेंगे हम? ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है? 2 8 जा 16। हम इसको सॉल्व करेंगे। 84 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 42 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद थर्ड लाइन में ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वेयर इज मल्टीप्लिकेशन? 2 3 जा 6। 84 प्लस 8 माइनस 42 प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? Then what is after multiplication? Addition. Operation of addition. Where is addition? 84 plus 8 42
आएगा? 48 आंसर। देखो इसको कैसे सोल्व करना है। ये प्लस की टर्म है 84, 8 प्लस की टर्म है और प्लस की टर्म कौन है? 6 प्लस की टर्म है। 3 प्लस की टर्म है ना, तो इन तीनों प्लस की टर्म को ऐड करो। 98 कितना आया? 98 बचा कितना माइनस के? 42। अब किस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे? सब्ट्रैक्शन। 98 माइनस 42 तो आंसर इज 56। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब समझ आया? अब समझ आया बोर्ड मास का रूल क्यों लिखवाया था? अभी आएंगे, अभी सिंपल से शुरू होते हैं ना, अभी ब्रैकेट्स वाले आएंगे। मुझे ये वाला क्या है? मैं जो आपने ये वाला करवाया ये मैंने बोला था ना, बोर्ड मास का रूल लिखा तुमने। बोर्ड मास में मैंने बोला सबसे पहले ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट नहीं लिखा, इसलिए ब्रैकेट को छोड़ दिया। उसके बाद ऑफ, यहाँ पे ऑफ लिखा था, हमने ऑफ को सोल्व करा। ऑफ की जगह पे क्या करा? दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 7 जो 42। उसके बाद डिवीजन करी हमने। डिवीजन किस किस के बीच में थी? 16 एंड 2 के, तो यहाँ पे क्या आया? 8। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करी, किस किस के बीच में थी? 3 एंड 2 के बीच में। उसके बाद हमने एडिशन करा। ऐड वाली टर्म्स कौन कौन सी थी? 84, 8 एंड 6। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन करा। सिंपल है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल चलना है बोर्ड मास में। ओके, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। ये उतार दिया सभी ने? डिवीजन पे हूँ। ये क्वेश्चन आपको करना है। 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7 प्लस 45। ओपी ऑफ कौन करेगा? सीधे एग्जाम पर पहुंच गया तू। ऑफ क्यों लगाते हैं? अगर वो मैम मैं ऑफ क्यों लगाते हैं? मल्टीप्लाई ऑफ नहीं है डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 49। इसको सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। करो इसको सोल्व। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है, लेकिन देयर इज नो ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ सोल्व करना होता है बट देयर इज नो ऑफ। देन क्या सोल्व करना होता है? डिवीजन। डिवीजन सोल्व करो इसमें पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करो, उसके बाद एडिशन सोल्व करो, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। और मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। बोर्ड मास के रूल में वो तो सभी है। हरीश कहाँ पे है? क्या हरीश कहाँ पे है? कौन सा क्वेश्चन? डिवीजन वाला। वो चुप है नंबर। ये एग्जांपल्स के बाद अदर हुआ किसी का क्या आंसर आया? देखा नहीं मैंने, वो देखा उसका मल्टीप्लिकेशन। तू देखा मल्टीप्लिकेशन में नहीं आया था। तो क्यों नहीं आ रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन? मैंने सिखाया है ना यहाँ पे, तो तुम पीछे से क्यों देख रहे हो? करो इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? बताओ मुझे फटाफट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल।
-7 के बाद +45 डिवाइडेड बाय 5 हाँ, into ये 4. जुड़े हुए हैं ना दोनों? Yes. Yes. हो गया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला हो गया? नो मैम, अभी तो मैम एग्जाम्पल में हूँ। अपराजिता वो वाला क्वेश्चन करा जो मैंने दिया है। हो गया? कितना आंसर आया? नंबर वाला आ गया तुम्हारा? अभी लिख लो। हाँ प्लस वालों को सबको ऐड कितना? गलत है आंसर। 10 बनाना चाहिए। दोबारा चेक करो। 7 माइनस में पहले सब्ट्रैक्ट सॉरी एडिशन आता है ना, सबसे पहले एडिशन आता है तो ऐड को सॉल्व करेंगे। प्लस पैसा भी लिख सकते कि अब डिवाइड कर नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि इस लाइन में मैंने ऑफ को सोल्व किया, इस लाइन में ब्रैकेट को सोल्व किया, इस लाइन में मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया, इस लाइन में ऐड को, इस लाइन में सब्ट्रैक्शन। नहीं, ये सब लिखना नहीं होता है, ये समझाने के लिए। हाँ दोनों एक साथ करो, दोनों एक साथ ये लिखना नहीं है। लिखना है। नहीं, ये इस वाले एग्जांपल में लिखना है, बट हर क्वेश्चन में, हर एग्जांपल में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो टर्म बची है उसके साथ लिखो। अब सब्ट्रैक्शन को सोल्व भी कर लो। ये इक्वल भी लगा दें। अब 1 1 0 अब इनको सोल्व करके क्या आ रहा है? Seven minus 2. This is minus. This is minus. What is minus minus? Nine आएगा, but साइन किसका आएगा? Minus 1 1 0 से 9 minus. Which one? ये आ गया था? तो पूछा क्यों नहीं आपने? आपने क्यों नहीं पूछा? खड़े रहो। आपने पूछा क्यों नहीं? समझ आ गया? इसमें सबसे पहले ये समझ आया था आपको बोर्ड मास रूल। सबसे पहले किसको सोल्व करना है? ब्रैकेट को, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद किसको सोल्व करना है? ऑफ को। ऑफ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑफ की जगह पे क्या साइन लगाना है? मल्टीप्लाई। देन 6 मल्टीप्लाई 7 42। मैंने 42 नेक्स्ट लाइन में, तो मतलब इस लाइन में मैंने किसको सोल्व कर दिया? ऑफ को सोल्व कर दिया। उसके बाद ऑफ के बाद किसको सोल्व करते हैं? डिवाइड। वेयर इज डिवाइड? 16 डिवाइडेड बाय 2। 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है? 2 8 जा 16 8। अब डिवाइड का साइन यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है? इस लाइन में नजर आ रहा है? नहीं। उसके बाद डिवाइड के बाद किसको सोल्व करना होता है? उसके बाद मल्टीप्लाई कहाँ पे नजर आ रहा है? 3 2 3 2 जो कितने होते हैं? 6। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है? उसके बाद क्या आता है? अब एडिशन तो नजर आ रहा होगा। अब जो जो प्लस में है
दिस वन प्लस एंड दिस वन प्लस, जो जो प्लस में है उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कितना आया 98। उसके बाद -42 एज इट इज। अब कौन सा साइन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 56 आता है। अब समझ आया? अब भी समझ नहीं आया? क्यों? मैं वो दोनों डिवाइड से समझ नहीं आ रहा है। जब तक करोगे नहीं तब तक कैसे जाएगा? आप मोटे क्लास में हो, मल्टीप्लिकेशन में सेम ही जब तक करोगे नहीं आपको कैसे समझ आएगा? मैम मुझे दो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सेम होगा ना, बस उसमें ये साइन चेंज हो रहा है। बताओ, ये क्वेश्चन खुद से करके देखो अपनी नोटबुक में। करके देखो, बैठ जाओ। मैं सबसे पहले और कैसे समझाऊं मैं आपको? सबसे पहले कौन सा करना है? आप समझा दो। मैम उन दोनों को डिवाइड नहीं करना, आंसर आएगा उनका करना है। इनको पहले डिवाइड करना है, ये दोनों को भी जो आंसर आएगा उनको बस वो लिखना है, फिर जो आएगा उनकी मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। हो गया ये वाला क्वेश्चन? पहले डिवाइड था, पहले डिवाइड था 30 को 6 से डिवाइड कितना है? मैं एक क्वेश्चन करूंगा। हो गया? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 करो। देखो मैं बता रही हूँ ब्रैकेट वाले कैसे करने होते हैं। सबसे पहले आपको ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे ये रहा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कोड मार्क्स लगाना होता है, तो ब्रैकेट के अंदर कोड मार्क्स लगाओ। पहले क्या लिखना है? यहाँ पे डिवीजन करनी है, तो डिवीजन कहाँ पे है? 6 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे पहले डिवाइड करो, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 3। उसके बाद मल्टीप्लाई करनी होती है, मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ऐड करना होता है, ऐड करना, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना, तो ब्रैकेट में सिंगल टर्म बचेगी। समझ गए? ब्रैकेट में सिंगल टर्म बचेगी। हाँ तो ऑफ उसके बाद है।
पहले इस वाले ब्रैकेट में बोर्ड मास लगा, पहले bracket फिर जो वो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा उसके बाद इस वाले ब्रैकेट में बोर्ड मास लगना। जो उसका आंसर है वो हम माइनस करेंगे। हाँ वो माइनस। अच्छा पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर सबसे बड़ा पहले bracket, yes, उसके बाद सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है। और हम उसके बाद अंदर वाले सॉल्व होगा। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना उसके बाद और सॉल्व होगा और उसके बाद बोर्ड मास लगेगा आगे। मेरा आंसर आएगा क्यों कर रहे हो? ये इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो सपोज 101 आता है तो माइनस 10 बनाना है, उसके बाद ओ को सॉल्व होगा। ऑफ को सॉल्व करना है यही देखकर फिर जो आएगा वो सबको ऐड करना है, पहले ये था, फिर हाँ। ऐड होगा। डिवाइड करना था +7 इसको ये करना 8 प्लस कितना होता है कैसे? 18 प्लस 16 कैसे? नहीं बताने से नहीं, पहले डिवाइड करना है इसको। डिवाइड कहाँ करोगे?